straight across to Pradeep Nambiar. We got Pradeep with us. Pradeep. Yes, I can hear you, sir. Right, you got a huge crowd right behind you. You got absolutely huge. Right. The Right. entire Mumbai is suffering. I think what has happened is people have suddenly realized that Lemon TV is the only channel which is actually giving them a platform. Everybody seems to have realized कि महज एक चैनल है पूरे हिंदुस्तान में जो गरीबों की आवाज़ बुलंद करना चाहता है और उसके पास साहस है गरीबों की आवाज़ को बुलंद करने का, जो किसी से डरता नहीं है। शायद इसलिए इतनी तादाद में लोग ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। I think people have suddenly realized that there is one channel that is not scared of telling the truth. And I am proud to say that is our channel and our show. Right, Pradeep? People have come here from all over Mumbai. The people have come here from Kandivali, they have come from Ghatkopar, and they come from Borivali. They have not come here to show their faces. They come to tell you that there's a problem. The housing industry is facing a big problem. It's a bigger scam. The SRA scam is a bigger scam. The redevelopment scam is a bigger scam. Mumbai is hit by the biggest scams, housing scams ever. The entire nation has ever faced. We find that people, there's no answer. There's no answer to the questions that the people are raising. They've got questions in SRA. They're saying, where is the house that you have promised us? From Borivali, they say, what about the quality of constructions? Borivali, they say, not only the quality of constructions, even the houses, even the rooms constructed for ULC under ULC, the government has not even taken. The entire project is affected. Here, Kandivali, they have come up with the collector's wife, daughter back the SRA project. We find the entire bureaucracy, we find the entire ministry, we found the entire government is involved in the SRA projects. You talk about the CM, you talk about the former CM, you talk about the deputy CM, you talk about the home. Everybody is involved in every land scam or the other in Mumbai. The entire Mumbai is divided. We'll go back to the people. Right. क्या है ये चक्कर है, क्या चक्कर है? आप लोग they have come from घाटकोपर से आए हैं। हम लोग घाटकोपर पंखा साहब और दरगाह से आए हैं। हमारे इधर जो बिल्डर है ना, वो सोसाइटी और बिल्डर मिल के सोसाइटी बनाए, कभी बनाए हमको पता नहीं। और जो भी काम करते हैं हमको कुछ बताते नहीं, पूछते भी नहीं, और वो गलत सब काम करते हैं। इनको दोनों को जो है ना अंदर डालना चाहिए और दोनों का अरेस्ट करना चाहिए, नहीं तो सीबीआई को सीबीआई इंक्वायरी बैठाई चाहिए, सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। बहुत क्या तकलीफ है आपको? ये घाटकोपर का ये सोसाइटी है, ये SRA सोसाइटी, SRA प्रोजेक्ट घाटकोपर का है। तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि वो झोंपड़े तोड़ता है अपना, उसका मतलब ये है कि कुछ। हेलो सर, ये जब ये सोसाइटी जब सोसाइटी जब बनी है, हम लोग को किसी को बताया नहीं गया है और ना किसी से पूछा गया है। कभी बनी है हमको कोई पता नहीं है। जब मालूम पड़ा कि भाई अंदर सोसाइटी बनी है, सोसाइटी वाले लोग मिलके और डेवलपर मिलके चीटिंग कर रहे हैं। अब ये कलेक्टर ये मिला है कि कलेक्टर और ये सब इनकी वाइफ और डॉटर मिलके ये सब चीट कर रहे हैं सारे में। अब ये लैंडलॉर्ड है, ये लैंडलॉर्ड है। अब लैंडलॉर्ड हमको पता नहीं था, लेकिन ये कब ये लैंडलॉर्ड हमको बाद में पता चला 5 फरवरी को, जिसका हाई कोर्ट में आज भी केस चालू है। 8 तारीख इसी महीने के 8 तारीख को हाई कोर्ट में केस चालू है। अब दोनों डेवलपर और लैंडलॉर्ड का आप ये कह कलेक्टर का फैमिली इस चीज में इन्वॉल्व है? यस। Mumbai Suburban Collector, they have come to tell you, Mr. Vishwas Patil's family, the collectors, Mumbai Suburban Collector's family is involved in this big scam. They're saying this is the biggest scam, this Ghatkopar scam. The people say they come here because they don't get justice anywhere. Rockline construction, ये बोल दे कि rockline construction क्या चल रहा है? आप यहाँ से हो कि घाटकोपर? आप बोलिए साहब, वो इतना अनलीगल काम कर रहा है साहब। आप ये एक्यूज कर रहे हैं, आप कलेक्टर को, मुंबई के कलेक्टर को एक्यूज कर रहे हैं कि उनके फैमिली इस स्कैम में इन्वॉल्व है। टोटल लगे हुए हैं और हम किसी मामले में पुलिस स्टेशन जाते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, उल्टा वो हमसे क्वेश्चन करता है कि क्या बुरा हुआ। NS2 उसके ऑफिस में रहना चाहिए साहब, वो पुलिस स्टेशन में जमा कर रखा है। उसमें नाम देखकर हम लोगों को 4-4 घंटे तक वहाँ पर परेशान करता है। और सुनिए, और उसके साथ साहब ये है कि उसकी सोसाइटी किस अंधेरे में बनी है, उजाले की बात छोड़ दीजिए, किस अंधेरे में बना है हमको कुछ पता नहीं है। हमारे माओं को, बहनों को, भाइयों को, हम लोग ऑन ड्यूटी रहते हैं, काम धंधे के लिए निकलते हैं। वो बोलते हैं आज फर्नीचर करो, नहीं तो ये हो जाएगा। 3 महीने के बाद तुम 70% में हम हैं, 30 में आप हो, आपको किस तरह निकाला जाएगा, कहाँ फेंके जाओगे पता नहीं चलेगा। ऐसा धमकी मुझे दी जाती है। हमारे
पूरे मोहल्ले को दी जाती है साहब। हम लोग बहुत बेबस है और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आर पाटिल साहब सुने और हमारे अशोक चौहान साहब सुने। हमारे उससे नर्म विनती है कि इस मोहल्ले को एसआरए के नाम पर रुसवा ना करें, बेघर ना करें और इस पर जल्दी से जल्दी कोई कड़ा हस्तक्षेप कर करके हम गरीबों को अपनी झोपड़ी में रहने के लिए ये किसका लैंड है? ये लैंड किसका है? Now they are accusing the collector of Mumbai, suburban collector, Mr. Vishwas Patil's family is involved in this particular project. Nobody seems to be listening. This is actually the fact. If the people we have found everywhere in everywhere in Mumbai, either the ministers are involved, the politicians are involved, the administration is involved. If the people who are supposed to protect the rights of the people, if the people who are supposed to take care of the most poorest of poor sections of the society, they themselves turn and try to exploit them, then who's going to take care of them? What about democracy? What about justice, liberty, equality, fraternity, the pillars of our constitution? What's going to happen to them? बोलिए, आप कौन बोल रहे थे? बोलिए। इसमें कुछ नेतागण भी शामिल हैं जिसका मैं नाम नहीं ले सकता हूं, वरना हमारे जान का खतरा भी हो सकता है। इसमें बहुत सारे नेतागण भी शामिल हैं और कलेक्टर का तो पोस्टर आप देख ही रहे हैं। आपको कलेक्टर से शिकायत है, कलेक्टर कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके फैमिली इसमें इन्वॉल्व है, उसके बावजूद कोई प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है आपके लिए। मैं हर महकमे में हम लोगों ने डिस्पैच कराया है, पेपर दिया है। लास्ट में सूर्यनगर चौकी से मुझे आर्डर मिला, लास्ट में कुछ नहीं करने के बाद उन्होंने हमको एक लेटर देकर हमको समाधान किया कि आपका एक कोर्ट मैटर है, आप कोर्ट में जाइए। सिविल कोर्ट में 1877 नंबर केस नंबर हमारा दाखिल है, जिसकी तारीख 8 तारीख है। उसके बाद क्या रिजल्ट मिलता है हम फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन आप चाहते हो कि विश्वास पाटिल पर इंक्वायरी हो? सर मेरा निवेदन है कि आप मेरी आवाज मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएं। आपका मैं हमारा मोहल्ला, हमारे टीम, गरीब बस्ती, स्लम एरिया, तहे दिल से आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे जिस दिन हमको इन कामों से निजात मिल जाए। मेन तकलीफ तुमचा काय प्रॉब्लेम काय आहे? कलेक्टर विश्वास पाटील आणि त्यांचं संपूर्ण फॅमिली या प्रोजेक्ट मध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत असं तुम्ही सांगतात, मगर तुमचं काय ते एसआरए मध्ये काय जाऊ शकत नाही, तुमचं काय ऑब्जेक्शन आहे? त्याच्यामध्ये असं कारण आहे की प्रत्येक पुस्तकामध्ये ज्यांनी पेपर दिलेत, नाही दिले, काय झाले ते पात्र आहेत, जे आज 45 वर्षे 60 वर्षे इथे राहतात, त्यांना अपात्र केलेलं आहे। मग असं का? याचं काही कारण असायला पाहिजे ना। इथे 2 बिल्डरांची केस चालू आहे आणि त्या 2 बिल्डरच्या केसमुळे लोक काय काय करणार? हे 2 बिल्डर कोण आहे? कोण आहे 2 बिल्डर कोण आहेत? एक बिल्डर है रॉकलैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है सोलारी लैंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। ये दोनों ही पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बोलता है मैं लिया हूँ, वो बोलता है मैं लिया हूँ। अभी तक दोनों ही बिल्डर ने किसी भी नहीं पब्लिक को फैक्ट सामने रखा ही नहीं है कि भाई ये डेवलपर है, मैंने इसे खरीदा हूँ या कन्वेंस लिया हूँ, जो भी हो, किसी को पब्लिक को कोई फैक्ट सामने रखा नहीं है ताकि पब्लिक किसी एक बिल्डर के भरोसे पे आकर के कुछ उसको सम्मति दे, कुछ डेवलपर के लिए जाए। ये लोग कोई टोटल पब्लिक को फैक्ट किसी को भी बताया नहीं है अभी तक। ये लैंड किसका? ये लैंड ओनर कौन है? ये लैंड का है अभी भी मालकाना हक पोदार मिल लिमिटेड के नाम पर। आज भी प्रॉपर्टी कार्ड 7/12 उतारा, जो भी है प्रॉपर्टी कार्ड 7/12 उतारा पोदार मिल लिमिटेड के नाम पर है आज भी। लेकिन आज भी ये डेवलपर बोलते हैं कि मैंने खरीदा हूँ, मैंने खरीदा हूँ। ठीक है, आपने खरीदा होगा। आपका कहना ये प्राइवेट लैंड है? प्राइवेट लैंड है, प्राइवेट लैंड है। एसआरए का आपको ऑब्जेक्शन है? एसआरए का ऑब्जेक्शन है हमको, लेकिन एसआरए के साथ भी पब्लिक की क्या सुविधा होती है उसमें पब्लिक को जानकारी दो कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा। कुछ भी फैक्ट, ये लोग सोसाइटी बनाए हैं, 4 कमरे के अंदर बैठ के बनाए हैं। बिल्डर आए हैं, 4 कमरे के अंदर बिल्डर लाए हैं, लेकिन पहले पब्लिक को उसकी सहमति होनी चाहिए। भाई हम ये डेवलपर लाए हैं, हम यहाँ ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं कि भाई इसकी सोसाइटी का ये प्रेसिडेंट होगा, ये सदर होगा, जो भी होगा। पब्लिक उसकी कोई भी सहमति ली नहीं गई, कोई राय लिया नहीं गया है, सब अपनी मन मर्जी चल रहे हैं। और जिसमें अगर जो भी कोई साइन नहीं करता है उसको हर तरह की धमकी देते हैं। अब आदमी रहेगा तो शाम में ड्यूटी पे चला जाएगा, घर में लेडीज बाल बच्चे अकेले रहते हैं, उन लोगों को धमकाते हैं आज अगर साइन नहीं होगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इनकी गुंडागर्दी चलती है, इनकी दादागिरी चलती है, इनकी लेडीज गुंडागिरी भी आती है। अगर औरतें होंगी तो औरतों के पास भी आती है, जो भेजते हैं लोग, इनको डराते हैं, धमकाते हैं कि अगर तुम साइन नहीं करोगे तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने कलेक्टर पे आरोप लगाया, मुंबई सबर्बन कलेक्टर पे आरोप लगा, मिस्टर विश्वास पाटिल, उनके फैमिली पर आरोप लगाया। ये तकलीफ है क्या है? वो कैसे मिस्टर विश्वास पाटिल जी और उनके फैमिली इस प्रोजेक्ट में कैसे इन्वॉल्व है? इसमें ये जो विश्वास पाटिल साहब इसके अंदर पार्टनर बने हैं, इनकी बेटी, इनकी वाइफ, इनका सबका डिटेल है मेरे पास।
ये इसमें शेयर होल्डर है, और इन्हीं की प्रेशराइज से हम लोगों की कई सुनवाई नहीं होती है ना। हम कलेक्टर हाउस में जाके डिप्टी कलेक्टर को हमने कंप्लेंट दिया है, हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने सारा डिटेल उसमें रखा हुआ है, डीसीपी साहब को बोला है, सीनियर को बोला है, हर तरह पे हमने पेपर वर्क सारा कर चुका है, लेकिन कहीं भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके लिए हम लास्ट मोमेंट हमारे भी मीडिया के पास आए हैं ताकि आप कुछ हमारी फरियाद सुने। This is what is happening. The collector's responsibility is to see that they decide who's eligible, who's not eligible. The deputy collector encroachments. He decides who's eligible, who's not eligible. He decides who's patra, who's a patra. He decides about so much facets of the SRA scheme. And when they are partners in this particular scheme, what do you expect? How do you expect justice to the people? They are crying. They have been going head on sector. Everywhere we found, the people are moving from pillar to post to seek justice. But because the people in the corridors of power are involved in these projects, the people, the administration, the bureaucracy are involved in these projects, nothing seems to be going in favor of these poor people. The entire SRA scheme is actually for these people. The basic housing is for these people. The basic housing is for these people, but they're devoid of it. They're not getting it. They're moving from pillar to post, seeking justice, which is just eluding them. बहुत तकलीफ हो रहा है आपको, बहुत गुंडागर्दी आपके खिलाफ हो रहा है। 15 माले की बिल्डिंग बनाएंगे, अगर नहीं बनाने को अगर बोले, पहले 7 माले की बोला था, अब ये 15 माले की बोलता है, और हम लोग उसको बोलते हैं कि हम लोग को 15 माले में नहीं जाना है, तो बोले तुम लोग को ना घर से बेघर कर देंगे। ऐसा करके हम लोग को डराते धमकाते हैं। हम लोग की कोई सुनता ही नहीं, सुनवाई कोई करता नहीं है। और अपने ही आपस में ग्रुप में लोग ने मेंबर बना लिए है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग ऐसा कर देंगे, हम तुम लोग घर का बेघर कर देंगे। हमारा और घर का दूसरे का नाम पे घर लेता, वो पेपर दूसरे के नाम पे बनाया। राशन कार्ड हमारे आदमी का नाम आना चाहिए, लाइट का बिल हमारा, तो वो ये करता। आधा एरिया टूट गया, अभी कुछ बोले तो क्या बोलता मालूम है, बोले कि तुम लोग अभी इधर का तोड़ेंगे ना तो घर खाली करना पड़ता बोले। और औरत लोग आके बोलती कि बोले यहाँ पे नहीं, तुम लोग 1-2 मर्डर हुए तक बोले बिल्डिंग नहीं बनेगी, जब तक ये नहीं होगा वो नहीं होगा। औरत लोग 7-7, 8-8 औरत लोग आके डराते रहती, धमकाते रहती। हमारा आदमी सारा दिन घर में रहता नहीं, काम पे जाता। कभी हमारे बाल बच्चे रहते, उन लोग आएंगे आके धमकाएंगे करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? आज उन लोग का घर टूटे, कल हम लोग का भी टूटता। हमारा भी एरिया हमारा भी टूटने ही वाला। मतलब हमारे घर का हम लोग को हक नहीं देंगे और दूसरों को हक देंगे, बोले तो ऐसा थोड़ी होता। तुम आके हम लोग को बताए क्या हमारा ये नाम है, क्या हमारा ये है? हमारा नाम भी नहीं है, हम आके बोलते भी नहीं क्या तुम्हारा नाम का आया, क्या कुछ हुआ। बोले तुम लोग आराम से बैठो, बाद में बताएंगे, बाद में सोसाइटी बनाएंगे। बोले काय की सोसाइटी बनाए? तुम हम लोग को बताए क्या? आप आपस ही में मीटिंग रख लेती, आपस ही में बातचीत कर लेती, आपस ही में ही करते, और किसी को सामने बोलते नहीं, किसी के करते नहीं। जब एरिया की मीटिंग है तो सारे एरिया को जमा करना चाहिए। हाँ, सारे एरिया को बोलना चाहिए, घर हमारा लेंगे और मीटिंग आपस ही में करेंगे। हाँ, सब आपस ही में बात कर लेंगे, और जो उन लोग है सोसाइटी वाले वो लोग बन जाएंगे, और सब सोसाइटी का सबको तकलीफ है। आपको बोलिए आपको भी तकलीफ है। मेरे को ये तकलीफ है कि मेरे पिताजी गिर गए, इतना वो बीच में सब तोड़ ताड़ के डाल दिए, मेरे पिताजी को मार लग गया, उनको इलाज को पैसा नहीं दिए, कुछ नहीं दिए। हम बोले तो बोले हम क्या कर सकते, बोले उसका। तभी हम लोग किसको बोलना? अभी 2 महीने से मेरा पिताजी हॉस्पिटल में है, और हम लोग आपको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है? आपको कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है? गुंडे बदमाशों को आपके पास भेज रहा है और आपको बोलते हैं साइन मारो। और हमारा 2 रूम का बोल रहे तो 1 ही रूम देंगे बोलते, 2 नहीं देंगे बोलते। मम्मी और हम साथ में रहते हैं तो बोले हम सिंगल ही देंगे, पास करेंगे, डबल नहीं देंगे बोलते। What happens when the people who are supposed to look after the affairs of SRA are themselves partner in the entire deal? The housing scam, the entire housing, that the SRA scheme or whatever you call the redevelopment, everything is totally in a mess. They want the chief minister to involve, but what happens if the chief minister himself is involved in projects? He's a partner in projects. There are rumors of people who came from Goregaon East across the highway. They said 140 acres, about 100 acres have been allotted to a private builder with all rules thrown to the wind. Nothing seems to be happening. We'll go back to this people. They have come from Borivali. They have got a problem. Borivali, they have got a problem. Who's going to speak? Billy, you got a problem. You come from Borivali. There was a redevelopment. The concerned government authority has not taken over the flats that have been allotted to them. This is happening for the past 15 to 16 years. What is happening? See, we have 15 flats under ULC quota, 10% quota, which is not taken over by government and which is not handed over by the builder. And for the last 25 years, it is lock and custody of the builder.
and no internal maintenance is done. And because of that, there are cracks, internal cracks on beams and columns, and we are in a danger zone. Building may collapse anytime. That is what we are afraid of. Like Lakshmi Chaya in the West, Borivali West, we don't want to die. Our 150 people are in danger and building may collapse anytime. And our 30 flat owners ka property is a loss, total loss. We are afraid of this situation and nobody is taking care of our problem. And we have written to collector, additional collector, ULC, several times. He has not taken any action. And we have written to newspapers. Go on. We have written to Chief Minister. We have written to MLA. We have written to all ministers. Revenue Minister. And it is a total revenue loss for the country. For the last 25 years. There is Mr. Ashok Chauhan, the Chief Minister of Maharashtra. This is for you. They are staring death at every moment. They are saying the quality of constructions are so poor. The government has not been acting the way it should. The government is not enforcing the law the way it should. They are staring death every moment. The poor quality of construction is not doing any good. It is aggravating the problem. Boliye. And government should take some kind of action. ULC quota, 10% quota flats, why it is not taken over by government? There should be an answer to the public. It is a revenue loss for the country. And that should not happen. And we are in a danger zone. Our building may collapse anytime and we may die. We don't want to die. We are taxpayers. We are looking after the country and country should look after us. And all media should help us. And visual media, You want the government to interfere. You want the CM, Mr. Ashok Chauhan, to interfere. So many people have come here not to show their faces on television, but to tell you that there's a genuine problem. The housing industry itself is facing a huge problem. There are SARA scams, false ration cards, false societies, fraudulent members. Everything is not doing. The pillars of our constitution are being shaken by the absolute acts of omission by the government. Boliye. First of all, let me congratulate Mr. Bajaj and his team. He is doing really excellent job by bringing out such problems of really the problems of the people. The people who cannot raise their voice to the level which are supposed to listen our problem. Now, so first of all, I congratulate and I wish you all the best to complete team of Lemon. Now, coming back to our problem, we are from Borivali Mangala Cooperative Housing Society, Kulupwadi. Now, our building is, as our colleague has told, Mr. Nair has already told, that since last 24 years, this building is there. Out of the total flat, around 15-13 flats are under dangers. Now, some of the flats are at ground floor, some of the flats are on the top floor. So, we are worried any moment because these cracks are developed on the pillars as well as beams. So, we are worried that any moment this can collapse and it will cause a total life of around 150 plus people. Children are playing around ground floor, nearby ground floor, and everybody's life is under danger. We have tried our level best, our society has tried our level best to bring this problem to the notice of the concerned people. Highermost is Chief Minister. At that time,